Hello everyone, welcome to Elite's Grids. So today we will study another principle of parajumbles, which is progressive scaling. Now before we understand it what it is, let's understand why do we need to study it. See, we have to understand that from where parajumbles are taken. From a piece of information कोई article होगा या कोई ऐसे उसमें से sentences लेके they are rearranged. फिर हमें उसमें पैटर्न लगा के अरेंज करना होता है टू गेट द कोहरेंट पैराग्राफ. इफ़ आई अंडरस्टैंड कि ऑथर राइटर का क्या माइंडसेट है, क्या पैटर्न फॉलो करते हैं वो लिखते हुए, देन इट विल बिकम ईजियर फॉर मी टू अरेंज दैम. तो उसमें एक बहुत कॉमन पैटर्न होता है प्रोग्रेसिव स्केलिंग. इवन व्हेन यू राइट समथिंग, सो दोज ऑफ यू हु राइट, यू वुड हैव सीन दिस कि हम क्या करते हैं, एक यूनिट से फिर उससे बड़ी यूनिट की डिस्कशन, फिर उससे बड़ी यूनिट की डिस्कशन, ऐसे चल रहा होता है. लेट्स से अगर हमें किसी इश्यू के बारे में कोई आर्टिकल लिखना है, लेट्स से विमेन इश्यू से रिलेटेड, तो वी विल डिस्कस कि इन आवर होम्स what happens in our home, like there are certain issues that women suffer. फिर हम कहेंगे it's not just about our home but in other houses also that happens. So in others houses also that is happening, and then we will say it's not just about the community, but at the entire national level women have certain issues. So it's not just in houses that women are suffering, but at the national level. And then we will say not just at the national level, but in the entire world women have some issues. Those issues can vary from one country to another, but issues हैं. तो अब हमने क्या किया है, हम एक छोटी यूनिट से फिर बड़ी, एक इंडिविजुअल से कम्युनिटी, फिर नेशनल लेवल, फिर वर्ल्ड के लेवल पे वी आर मूविंग. सो देयर इज अ स्केलिंग, प्रोग्रेसिव स्केलिंग. लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. जैसे रिसेंटली इट हैज़ बीन इन न्यूज़ कि देयर वाज एन एम्प्लॉय वर्किंग इन EY हु डाइड बिकॉज ऑफ ओवरवर्क. सो if I'm talking about individual that she was suffering from stress, तो फिर हम कहेंगे कि it was not just her, the entire team was having such issues, but वो हमें पता नहीं चले, they have not come to limelight, but the entire team was suffering from it. Then we will say it's not just team, but the entire company is having this bad culture. Everybody in that company is supposed to work like that. फिर हम कहेंगे इट्स नॉट जस्ट कंपनी बट एक्चुअली इंटायर कॉर्पोरेट वर्ल्ड हैज़ बिकम लाइक दैट. सिर्फ एक कंपनी की बात नहीं है. तो ऐसे हम प्रोग्रेसिव स्केलिंग शो कर रहे हैं. तो दिस इज़ अ कॉमन पैटर्न जो एक ऑथर दे यूज़ वाइल राइटिंग. तो इसी को अब हम अप्लाई करते हैं कैट क्वेश्चन में. सो दिस इज़ कैट 2023 क्वेश्चन. अब वी विल सी how this principle applies here. So let's start reading it. Like the ants that make up a colony, no single neuron holds complex information like self-awareness, hope or pride. ये कह रहे हैं कि एक न्यूरॉन, एक सिंगल न्यूरॉन बहुत कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन लाइक सेल्फ अवेयरनेस. सेल्फ अवेयरनेस मीन्स यू आर कॉन्शियस, यू आर दैट यू आर अलाइव, यू आर ब्रीदिंग, वो कॉन्शियसनेस. तो इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन होल्ड नहीं कर सकता. मैं किसके लेवल पे बात कर रही हूँ, एक के लेवल पे. Although the human brain is not yet understood enough to identify the mechanism by which emergence functions, most neurobiologists agree that complex interconnections among the parts give rise to qualities that belong only to the whole. Now what is this sentence saying कि हमें नहीं पता कि emergence functions मतलब का mechanism क्या होता है. We have not understood the brain to that extent. But what is emergence functions by the way? Emergence functions means जब sum of parts, कुछ ऐसे parts हैं, they are interconnected, they are working together, but they are working in such a manner, इतना अच्छा connection है कि they give a property which is more than that mere sum. When we say the whole is more than just sum of its parts, तो exactly वो थिंग कि वो इतने अच्छे से वर्क कर रहे कि एक ऐसे प्रॉपर्टी, इंडिपेंडेंट प्रॉपर्टी आ गई जो किसी से लिंक्ड ही नहीं थी. तो एमर्जेंस फंक्शंस, मोस्ट न्यूरोबायोलॉजिस्ट अग्री कि कितने कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस होते हैं, एंड दैट कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्शंस गिव सच क्वालिटीज़
जो एक पर्टिकुलर होल ही परफॉर्म करता है. इट्स नॉट जस्ट अबाउट मेयर एग्रीगेशन, मेयर ग्रुप और मेयर सम ऑफ पार्ट्स, बट वो इतने अच्छे से काम कर रहे हैं कि वो एज अ होल काम कर रहे हैं. सो ये डेफिनेटली एक चीज़ के बारे में नहीं है, एक जैसे हमने इंडिविजुअल के बारे में पढ़ा, ये बहुत सारी चीज़ें, मल्टीपल लेवल, बट देन दे आर वर्किंग एट अ वेरी वेरी गुड कोहेरेंस. थर्ड, nonetheless, the sum of all neurons in the nervous system generate complex emotions like fear and joy, none of which can be attributed to a single neuron. ये सेंटेंस हम देख सकते हैं फर्स्ट से बहुत अच्छे से लिंक हो रहा है. ये कह रहा है कि जैसे फर्स्ट ने कहा कि एक न्यूरॉन नहीं होल्ड कर सकता इतनी कॉम्प्लेक्स इंफॉर्मेशन, तो nonetheless, बट सम ऑफ ऑल न्यूरॉन्स सम कर लेते हैं. जो एक न्यूरॉन नहीं कर सकता वो सम ऑफ न्यूरॉन्स कर सकता है, ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स कर सकता है. तो दिस वाज वन, दिस इज अबाउट ग्रुप और दिस इज अबाउट सम. फोर्थ, ह्यूमन कॉन्शियसनेस इज ऑफन कॉल्ड एन इमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन ब्रेन. ये एक जनरल सा स्टेटमेंट है, इसमें कोई नंबर वाली बात नहीं है. इट इज जस्ट सेइंग कि वो एक इमर्जेंट प्रॉपर्टी है. दैट्स ऑल. Now, if I look at the first three sentences, first sentence is talking about one thing, एक न्यूरॉन, ठीक है. थर्ड इज टॉकिंग अबाउट सम ऑफ न्यूरॉन्स, कि जो एक न्यूरॉन नहीं कर सकता वो सम ऑफ न्यूरॉन्स कर सकता है. फिर सेकंड कह रहा है कि इट इज़ नॉट जस्ट सम, वो सिर्फ एक ग्रुप नहीं है, वो इतने अच्छे से इंटरकनेक्टेड है कि वो ऐसे एक्ट कर रहा है कि वो एक होल है. होल इज ग्रेटर देन द सम ऑफ इट्स पार्ट. तो वो होल की तरह एक्ट कर रहा है जैसे, तो वो अपने आप में एक इंडिपेंडेंट एलिमेंट हो गया, ऐसे कोई मिक्सचर नहीं बट अपने आप में एक एलिमेंट हो गया. तो होल, तो सम और ये है इंडिविजुअल. तो वी कैन सी कि वो प्रोग्रेसिव स्केलिंग अच्छे से दिख रही है कि हम पहले कि इंडिविजुअल के बारे में बात की, एक न्यूरॉन नहीं कर सकता, सम ऑफ न्यूरॉन्स कर सकता है. और वो सिर्फ सम नहीं है, वो इतने अच्छे से इंटरकनेक्टेड है कि वो एक होल पार्ट की तरह एक्ट कर रहा है. तो बिगर देन द सम, राइट, यू गेट द इंटरप्रिटेशन, इट्स बिगर देन द सम. तो बीच में ये फोर्थ की तो कोई सेंस ही नहीं बन रही है इस फ्लो में, तो या तो पहले आएगा या इसके बाद आएगा. अब सेकंड में हम एमर्जेंस के बारे में इतना डिटेल में बात कर चुके हैं, हाउ इट फंक्शंस, क्या मैकेनिज्म है क्या नहीं. उसके बाद हम एक जनरल से इंट्रोडक्शन तो नहीं दे सकते कि इट इज़ एमर्जेंट प्रॉपर्टी ऑफ ब्रेन. तो ये स्टार्टिंग वाला सेंटेंस है जो टॉपिक को इंट्रोड्यूस कर रहा है कि ह्यूमन कॉन्शियसनेस जो है वो एक एमर्जेंट प्रॉपर्टी है. और फिर ह्यूमन कॉन्शियसनेस के बारे में फर्स्ट में भी बात की गई है कि सेल्फ अवेयरनेस, जो ह्यूमन ये अवेयरनेस एंड कॉन्शियसनेस जस्ट सेम थिंग हियर. तो सेल्फ अवेयरनेस जो है ये इतनी कॉम्प्लेक्स चीज़ है कि इसको एक न्यूरॉन होल्ड नहीं कर सकता, बट सम कर सकता है. एंड दे आर वर्किंग इन सच अ मैनर एज इफ दे आर अ होल, दे आर अ होल सिस्टम, नॉट जस्ट सम ऑफ द पार्ट्स. सो दिस इज द सीक्वेंस. सो आई होप यू वुड हैव अंडरस्टूड कि ये प्रिंसिपल कैसे अप्लाई होता है. और ये एक बहुत कॉमन पैटर्न है, अगर आप न्यूज़पेपर में भी आर्टिकल्स पढ़ोगे, वी बिगिन फ्रॉम वन इवेंट, कोई एक रिसेंट हैपनिंग होती है, एक इवेंट के बारे में बात हो रही होती है, फिर धीरे धीरे ऑथर उसे कहेगा ये सिर्फ इस इवेंट के बारे में नहीं है, देयर आर मैनी पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम दिस इशू. तो हम लोग स्केलिंग पे जा रहे होते हैं, एक से बड़े लेवल पे. तो ऐसे ही यहाँ पर भी वो हमने अप्लाई करके देखा है, एंड दिस हैज़ रियली वर्कड वेल हियर. So I hope you would have understood this concept. We will be back with more such questions, more such tricks. Till then, keep working hard for your exam. Thank you.